حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا آقا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اے اللہ کے پیغمبر میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اجازت لینے آیا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا, مسلمانوں اس کی قدر کو کتنا وزن ہے اس جملے میں. آپ نے فرمایا یا اخی شبنا بدعائی, یا اخی شبنا بدعائی, میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے شریک کر لینا. ولا تنسانا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ امام الرسل فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, اور کس سے کہہ رہے؟ اپنے شاگرد, اپنے جانثار, اپنے فداکار, اپنے وزیر, اپنے مشیر, اپنے صحابی حضرت فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں کتنی محبت تھی سیدنا حضرت فاروق اعظم کی. آپ فرمائیں میرے بھائی, یا اخی میرے بھائی, یہ جملہ بتا رہا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کس درجہ محبت تھی. اپنے شاگرد رشید تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم. دوسرے کیا پتا چلا فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے, فاروق اعظم کا درجہ کتنا بلند ہے. فاروق اعظم کا مقام, مرتبہ, منقبہ اور ان کا کمال, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ان کی مقبولیت کتنی زیادہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا کی درخواست کر رہے ہیں. ہاں اللہ کے پیغمبر فاروق اعظم مجتبی تھے. مجتبی جانتے, مجتبی کہتے ایسے بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے تھے فاروق اعظم. فاروق اعظم کی قدر کون جانتا؟ اگر اللہ کے پیغمبر نہ جانتے تو کون جانتا؟ میاں حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کا رتبہ شہ ابرار سے پوچھو, اصحاب کا رتبہ شہ ابرار سے پوچھو, اور درباریوں کا مرتبہ سرکار سے پوچھو. اللہ کے نبی جانتے ہیں عمر کیا ہے, اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں صدیق کیا ہے, اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں علی کیا ہے, اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں حسنین کیا ہے, اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں عباس کیا ہے, اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جانتے تھے فاروق اعظم کا مقام اللہ کی جناب میں کتنا اونچا ہے. فاروق اعظم اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی شوکت کے لیے, اسلام کی بلندی کے لیے دعا کر کے حضرت فاروق اعظم کو مانگا تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نظار ابن صفوہ نے پوچھا کہ حدثنا امیر المومنین, حدثنا بعمر بن الخطاب. اے علی ذرا عمر بن الخطاب کے بارے میں بتاؤ. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حضرت علی سے. کیا فرمایا حضرت علی نے؟ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ اللَّهُ الْفَارُوقُ, وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے جس کا نام فاروق رکھا ہے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ خطاب کے بیٹے کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے, اسلام کو شوکت عطا فرما دے, اسلام کو بلندی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن میں کیا بتایا پتا؟ دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آ جائے. سو قرآن اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین حق بھیج کر اس لیے دے کر بھیجا تاکہ
کے پیغمبر کے زمانے میں اسلام سے وہ عرب میں تھا، لیکن ایران میں اور روم میں اور فارس میں اور شام میں اور عراق میں کس کے زمانے میں اسلام پھیلا؟ یہ صدقہ ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرائی اپنے نبی سے تاکہ عمر بن خطاب کا اعزاز ظاہر ہو، مقام ظاہر ہو، مرتبہ ظاہر ہو، ورنہ فاروق اعظم کا اسلام لانا، فاروق اعظم کا مراد رسول ہونا، فاروق اعظم کا خلیفہ برحق ہونا، فاروق اعظم کا فاتح بیت المقدس ہونا، فاروق اعظم کا فاتح مسجد اقصی ہونا، فاتح شام ہونا، اللہ تبارک و تعالی قسام ازل ان کے مقدر میں پہلے لکھ چکا تھا، اللہ پہلے لکھ چکا تھا۔ کہاں لکھا ہوا تھا؟ قرآن میں، قرآن بتا رہا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، نہیں اللہ فرماتا قرآن میں نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور نہیں اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا تھا کیا؟ کہ عمر مسلمان بھی ہوں گے، صحابی بھی بنیں گے، خلیفہ بھی بنیں گے، دین اسلام کو غلبہ بھی ان کے ذریعے سے ملے گا، اور بیت المقدس کو فتح بھی نہیں کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، کیسے پتا چلا لکھا ہوا تھا؟ توریت میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، کیا قرآن پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کہتا ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، زبور کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ ہم لکھ چکے تھے زبور میں، تب فاروق اعظم کے وجود سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اللہ فرماتا ہم لکھ چکے تھے زبور میں من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر کہتے نصیحت، نصیحت کے مضامین کے بعد زبور بھی لکھ چکے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں ذکر توریت کو بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا ہم لکھ چکے تھے زبور میں توریت کے بعد۔ پہلے توریت میں لکھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پھر زبور میں بھی ہم نے لکھا۔ اے اللہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث، زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان قرآن فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت میں زمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے، فلسطین کی زمین ہے، جہاں بیت المقدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم لکھ چکے تھے کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، اور نیک بندوں سے مراد کون ہے؟ عبادیت صالحین سے مراد کون ہے؟ فاروق اعظم اور ان کا لشکر مراد ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کا یہ نام، یہ مرتبہ رب العزت والجلال نے فرمایا عبادیت صالحون، نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ عبادت صالح، نیک بندہ، یہ تعریف کس نے کی؟ یہ بندے کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے فاروق اعظم عبد صالح ہے، اور فاروق اعظم کا لشکر عبادت صالح اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ معمولی تعریف نہیں ہے، بندے تو خدا کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ اگر کسی کی تعریف کرے یہ بڑی بات ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا تعریف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی لیے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی، مسلمانوں کو نصیحت کی تھی، اور علی کی نصیحت پر عمل کرنے والا کون ہے؟ وہی علی والا ہے جو علی کی نصیحت پر عمل کرے، جو علی کے طریقے پر عمل کرے، جو علی کی پیروی کرنے والا ہو، جو علی کی روش پر چلنے والا ہو۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے محبت کا اور وظیفہ پڑھے حضرت علی کے نام کا،
मगर उनके फैसले को ना माने, उनके तरीके पर ना चले, तो वो अली वाला तो नहीं हो सकता। क्या कहा हुजूर पाक हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या कहा? इज़ा ज़ुकिरा सालिहून, ए मुसलमानों, जब नेक बंदों का जिक्र किया करो, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया करो, फ़अली आदम बि उमर, तो उमर इब्न खत्ताब का जिक्र जरूर किया करो। क्यों? उनको कुरान मुक़द्दस में रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फरमाया, यरिसुहा इबादियस सालिहून, मुल्क शाम के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तो ये क्या लिखा था? फारूक आजम का जिक्र था, उनका सरापा था, उनका हुलिया था, उनकी अलामत थी, उनकी निशानी थी, उनकी अदाएं थी, उनकी फतूहात थी, सब कुछ लिखा हुआ था। यही वजह है जब मिस्र का फतेह करने के बाद हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआशरा किया, किसका? बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया। तवील जमाना गुजर गया तो वहां के ईसाई कोट और पादरियों ने कहा, मियां बेकार आप लोग जहमत कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने की, मस्जिद अक़सा को छीनने की आप बिना वजह फजूल कोशिश कर रहे हैं, नहीं फतेह होगा ये। हमारी किताब में जो बैतुल मुक़द्दस फतेह करने वाला है उसमें उसका नाम है, अलामत है, सरापा है, हुलिया है, निशानियां लिखी हुई है। अगर तुम्हारे अमीर में वो निशानियां अगर मुझे मिल गई तो हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। ये मस्जिद अक़सा, ये बैतुल मुक़द्दस, हम इसकी चाबियां खुद तुम्हारे हवाले कर देंगे। हज़रत फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खत लिखा गया कि यहाँ इस तरह की बात हो रही है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना नायब बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना नायब बनाया और फारूक आज़म मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। और अंदाज बड़ा अजीब था फारूक आज़म का, ऊँटनी पर सवार है और कुर्ते पर 17 पैबंद लगे हुए हैं। और कौन है? उमर इब्न खत्ताब, अल्लाहु अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला और खिलाफत करने वाला अल्लाह के पैगंबर का जानशीन है। और कैसी खिलाफत? सारी नहीं, सीने दरिया पे हुकूमत फारूक मुअज़्ज़म के सिवा कौन करेगा? दरियाओं पर, पहाड़ों पर, हवाओं पर, और इसी तरीके से आप पर हुकूमत किसने की है? सैयदना हज़रत फारूक आज़म इब्न खत्ताब ने की। हज़रत फारूक आज़म है और कुर्ता कैसा? 17 पैबंद लगे हुए हैं। क्या ऐसे ही होते हैं बाकी फिरत के गज़ब करने वाले? क्या ऐसे ही होते हैं खिलाफत को छीनने वाले? सैयदना हज़रत फारूक आज़म है, 17 पैबंद। और खाने में क्या है उनके? कोरमा, बिरयानी, कबाब, क्या चीज है? फारूक आज़म का खाना क्या है? अल्लाह अल्लाह, खजूर है और जौ है, ये खाना है उनका। और जा कहाँ रहे हैं? दुश्मनों के मुल्क में जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए जा रहे हैं। और एक ऊँट है, साथ में गुलाम है, कभी खुद बैठते हैं और ऊँट की नकेल पकड़ के गुलाम चलता है, कभी गुलाम को बिठाते हैं, खुद नकेल पकड़ करके चलते हैं। हज़रत फारूक आज़म जब करीब पहुंचे तो मुसलमानों ने फारूक आज़म का इस्तेमाल किया आगे बढ़ करके और उसके बाद कहा, अरे अदब से अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मदीने में तो कोई मसला नहीं है, ये दुश्मनों का मुल्क है, दुश्मनों का इलाका है और आपके कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, कैसा लगेगा? कैसी बदनामी होगी? लोग क्या सोचेंगे? अमीरुल मोमिनीन कुर्ता बदल लीजिए, लाओ कुर्ता। फारूक आज़म ने कुर्ता बदला। उसके बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये घोड़ा बड़ा उमदा है, बजाय ऊँट के आप घोड़े के ऊपर बैठ करके चले। फारूक आज़म ने कहना कर लिया और कहा, सुनो, ये जो तुम लोग कह रहे हो तुम्हारा दिल रख लिया हमने, वरना घोड़े पर सवार होने से, उमदा कपड़े पहनने से इज्जत नहीं मिलती। नाम कौन? आसनल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं, हमें इज्जत अल्लाह ने इस्लाम पर अमल करने की वजह से दी है। इन कपड़ों
लाओ मेरा पैबंद लगा हुआ कुर्ता और लाओ मेरी ऊँटनी। फारूक आजम ने कुर्ता उतारा और वही 17 पैबंद वाला कुर्ता उतारा नहीं, खुदा ने उतरवाया, घोड़े को रख दिया और ऊँटनी पे सवार हो गए। हज़रत फारूक आजम जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे और दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए तो गुलाम की बारी के ऊंट पर बैठने की और फारूक आजम की बारी की नकेल पकड़ के चलने की। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, शहीद मेहराब नबवी, अल्लाह अकबर, इतना अजीमुल मर्तबा इंसान जिसके नाम से कैसर और किसरा में ज़लज़ला आता था, शाहान जहां थर्राते थे, जिन पर लड़ाकारी हो जाता था, वो अमीरुल मोमिनीन है, फारूक आजम है और इस तरह आ रहे हैं। पैदल में चल रहा हूं, सवारी पे तुम चलो, पैदल में चल रहा हूं, सवारी पे तुम चलो। फारूक कह रहे हैं अपने गुलाम से। जब इस तरह फारूक आजम दाखिल हुए तो वहां के जो उलमा थे और पादरी थे और ईसाई रानी थे और पोप थे, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अपनी किताबें खोल करके बैठ गए और किताब देखते हैं और फारूक आजम को देखते हैं। देखते देखते कपड़े भी देखे, सवारी भी देखी, गुलाम का सवारी पे बैठना भी देखा, फारूक आजम के नकेल पकड़े हुए आना भी देखा। यार उन लोगों ने चाबियां फारूक आजम के हवाले कर दी और कहा हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हमारी किताबों में लिखा हुआ था कि बैतुल मुक़द्दस का फातिह होगा, उसकी शान ये होगी, उसका सराबा ये होगा, उसकी हालत ये होगी, उसकी आदत ये होगी, उसकी निशानी ये होगी। सारी निशानियां मिल गई। हज़रत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फतेह किया। फतेह होने के बाद अब इसमें अजान तो नहीं हुई थी इस जमाने से, ये अजान कौन दे? अल्लाह के पैगंबर के इंतकाल के बाद हज़रत बिलाल हबशी ने मदीना छोड़ दिया था और अजान कहना छोड़ दिया था, मगर फारूक आजम के साथ हज़रत बिलाल भी हैं। मुल्के शाम में हज़रत फारूक आजम ने कहा बिलाल आज वो मदीने वाली अजान सुना दो जो अल्लाह के पैगंबर के जमाने में दिया करते थे, अजान सुना दो। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी ने जब अजान कहना शुरू की, क्या समा था, क्या मंजर था, लोग हिस्सियां ले लेकर रो रहे थे, आवाज बरस रही थी, याद आ रही थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लोग गश खा खा करके गिर पड़े, क्या उम्र होगा। हज़रत फारूक आजम तशरीफ फरमा है, इतनी देर में एक ईसाई राहिब बड़ी उम्र का आगे हुआ और आगे होने के बाद उसने एक चमड़ा, इसमें कुछ लिखा हुआ था, हज़रत उमर के हाथ में दिया। हज़रत फारूक आजम ने उसको लेने के बाद कहा लईसा लिउमरा वला लिइब्नी, लईसा लिउमरा वला लिइब्नी, मियां न ये उमर का है न उमर के बेटे का है। सब सहाबा हैरत में पड़ गए, या अल्लाह माजरा क्या है, किस्सा क्या है, ये तहरीर लेके आता है, हज़रत उमर ये क्यों कह रहे हैं। हज़रत फारूक आजम ने उसका पस मंजर बयान किया जो कुरान बता रहा है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नहु यरिथुहा इबादियस सालिहून। हम ज़बूर में लिख चुके थे, तौरात में लिखने के बाद इस मुसल्लमीन के वारिस, इसके मालिक, इसके फातिह मेरे नेक बंदे होंगे। तौरात और इंजील में फारूक आजम का कैसा तज़किरा था। फारूक आजम ने बताया कि ये आदमी ईसाई है और राहिब है, एक गिरजा घर का ये मुतवल्ली है और ज़माने इस्लाम से पहले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नबुव्वत का ऐलान करने से पहले मुल्क शाम में गया था कारोबार करने के लिए काफिले के साथ। जब वापस होने लगा काफिला तो मैं एक चीज भूल गया था। मैंने काफिले वालों से कहा अपनी गुमशुदा चीज को हम उठाने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा तुम लोग चलो हम आ जाएंगे। हज़रत फारूक आजम फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो काफिला जा चुका था, रास्ता भटक चुका था। चलते 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 रात हो गई गिरजाघर के दरवाजे पर। थोड़ी देर में पादरी आया, उसने देखा
तो खोदो, उठा के वहां डालो। और बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा के चला गया। कहते मुझे तो बड़ा गुस्सा आया और मैंने कुछ न किया, मैं गमज़दा बैठा हुआ था। जब वो आया और आने के बाद उसने कहा तुमने काम मेरा किया नहीं और मिट्टी तुमने खोद के वहां डाली नहीं, और उसने मेरे एक मुक्का मारा। फारूक आजम कहते हैं मैंने जो उसके एक मुक्का मारा तो नाक के रास्ते से उसका भेजा बह गया और मैं वहां से निकल पड़ा और फिर मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसके बाद के खुदा का करना, जब शाम हुई तो फिर दूसरे गिरजाघर के दरवाजे पे पहुंचा। अंदर से जो पादरी निकला और राहिब निकला वो दूसरे किस्म का आदमी था। उसने मुझे बड़ी इज्जत से बिठाया, बड़ा इकराम किया, बड़ी खातिर मदारात की, तरह तरह के उसने खाने खिलाए और खिलाने के बाद वो एक चमड़ा लेकर के आया और दवा तो कलम लेकर के आया और कहने लगा इस आप ऐसा है लिख दीजिए चमड़े के ऊपर कि मैंने गिरजा घर का मालिक तुमको बना दिया है और जितना इलाका हिस्सा है वो सब का मालिक हमने तुम्हें बना दिया है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते मैंने उससे कहा ऐ अल्लाह के बंदे तूने खाना खिलाया एहसान किया, तूने पानी पिलाया एहसान किया, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं जब खुद मालिक नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे मालिक बना सकता हूँ? कहने लगा कि देखो इस वक्त पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा तौरेत और इंजील का कोई दूसरा आलिम नहीं है और मैं जानता हूँ एक दिन आएगा इस इलाके को तुम फतेह करोगे। कहा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम उमर है। कहा खुदा की कसम तुम ही वो आदमी हो, ये इलाके को पामाल करोगे, यहाँ पे फातेह करोगे, ये इलाका तुम्हारे जेर हुकूमत जेर खिलाफत आएगा। ये अगर लिख देने में हर्ज क्या है? फारूक आजम कहते हैं मैंने लिखकर तो इसको दे दिया। आज जब मुल्क मिस्र फतेह हुआ और शाम फतेह हुआ और बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ तो वही मेरी तहरीर लेकर के आया है और वही चमड़े का टुकड़ा लेकर के आया है कि देखो आज से कितना पहले कुफ्र के जमाने में तुमने ये वादा किया था ये जमीन हम तुम्हें दे देंगे। हज़रत फारूक आजम ने फरमाया लैसा लिउमर वला लिइब्नी, न ये उमर की है न उमर की बेटे की है, मैं कैसे तुम्हें इसे मालिक बना सकता हूँ? मेरे भाइयों मेरे अजीजों मैं आगे कर रहा था अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फारूक आजम को अल्लाह के हुक्म से दीन के गलबे के लिए तलब किया था और मांगा था अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम कि उमर इब्न खत्ताब और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फारूक आजम से दुआ की दरख्वास्त की थी। इससे पता चला फारूक आजम अफजल नहीं है, अल्लाह के नबी तो नबियों से अफजल है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि फला लोग भी 12 लोग अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के रुतबे में बराबर उनसे बढ़े हुए हैं। नहीं, गैर नबी नबी के बराबर नहीं हो सकता है, कोई नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हो सकता है, गैर सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। लिहाजा हम कैसे मान लें हज़रत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला गैर अफजल है, आका तमाम नबियों से अफजल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से दुआ के लिए दरखास्त की। दरखास्त करके क्या बताया? फारूक आजम का मकाम मालूम हुआ, नबी की मोहब्बत मालूम हुई और मसला भी मालूम हुआ। क्या मसला मालूम हुआ? गैर अफजल आदमी से अफजल आदमी को भी दुआ के लिए कहना चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना गरीब आदमी हो और चाहे खस्ता हाल हो। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा, खुदा जाने कौन अल्लाह का मकबूल बंदा है, इसकी आमीन पर अल्लाह ताला की रहमत बढ़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ से मग़फ़िरत फरमा दे और जिंदगी को अल्लाह ताला संवार दे। इसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। अफजल को गैर अफजल से दुआ के लिए कहना चाहिए और ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम